सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। प्रोग्राम इल्म के ख़ज़ाने में मैं रज़ा हैदर डीडी उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, शहर हैदराबाद नवाबों का शहर, बादशाहों का शहर, निज़ाम का शहर, इस शहर की कई पहचान है। मक्का मस्जिद, सालार जंग म्यूज़ियम, चार मीनार, इस शहर को कई नामों से जाना जाता है। इस शहर की एक ख़ास बात ये भी है कि ये शहर इल्म व अदब, तहज़ीब व सक़ाफ़त और उर्दू ज़बान व अदब का भी शहर कहा जाता है। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में इस शहर ने नुमायाँ किरदार अदा किया है। नाज़रीन, वैसे तो हिंदुस्तान में बेशुमार एकेडमीज़ हैं, बहुत सारे इदारे हैं, मगर उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ अदबी और सक़ाफ़ती मरकज़ आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस एकेडमी की सरगर्मियाँ क्या हैं, किस तरह से ये एकेडमी वर्क करती है। जी हाँ, मैं उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश हूँ और मेरा क़याम नामपल्ली के हज हाउस की चौथी मंजिल पर है। ये हैदराबाद का खास इलाका है। उर्दू की शानदार सरगर्मियों की वजह से नामपल्ली को हैदराबाद के मुमताज इलाकों में खास अहमियत हासिल हो चुकी है। उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश को पब्लिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1350 के तहत 31 दिसंबर सन 1975 में कायम किया गया, जिसका खास मकसद उर्दू अदब और ज़बान को तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसके अलावा ये अकादमी उर्दू दानिश्वरों, आलिमों, अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों और तालिब इल्मों को मुख्तलिफ एज़ाज़ात से हर साल नवाजती रहती है। इस तरह की काबिल ज़िक्र उर्दू खिदमात ने न सिर्फ मुझे काबिल कद्र शोहरत अता की है,
بلکہ میرا نام دلی اور لکھنؤ جیسی اردو اکادمیوں کے ساتھ لیا جانے لگا ہے۔ ہماری ریاست میں اردو اکیڈمی کا قیام 1975 عیسوی میں عمل میں آیا، جس کے بعد مسلسل اردو اکیڈمی ریاست میں اردو زبان و ادب کے فروغ، ترقی و ترویج کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اپنی اردو خدمات اور اردو سرگرمیوں کی وجہ سے بلا شبہ اردو اکادمی آندھرا پردیش کا شمار ملک کی نمایاں اردو اکادمیوں میں ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ منتظمین اور اراکین جو پوری دلچسپی، لگن اور ایمانداری کے ساتھ اردو کی ترقی اور تحفظ کے لیے مصروف کار ہیں۔ ویسے تو ہندوستان میں بے شمار رسائل چھپتے ہیں، لیکن آندھرا پردیش اردو اکیڈمی سے جو رسالہ چھپتا ہے جس کا نام ہے قومی زبان، اس رسالے کی خاصیت یہ ہے کہ اس رسالے میں ہندوستان کے اہم ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے مضامین شائع ہوتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں وہ لوگ کہ جو اردو زبان و ادب کے تعلق سے کام کر رہے ہیں، ان کے بھی مضامین اس رسالے کی زینت بنتے ہیں۔ اس اردو اکادمی کا اپنا ایک اشاعت گھر بھی ہے، یہیں سے ماہنامہ قومی زبان بھی نکلتا ہے۔ اردو مضامین کے علاوہ اردو سرگرمیوں کی مفصل رپورٹ بھی اس میں شائع ہوتی ہے۔ رسالہ قومی زبان ایک اردو تحریک ہے جس کا اردو کی بیداری میں ایک اہم رول ہے۔ اردو اکادمی آندھرا پردیش اردو کے فروغ کے لیے مخصوص مطالعہ گاہیں اور لائبریریاں بھی بنواتی ہے۔ ہمارے یہاں پر ریاست میں اردو اکیڈمی اردو ادب، اردو زبان کے فروغ کے علاوہ ہمارے کمپیوٹر سینٹرز ہیں، لائبریریز ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں 43 یعنی کہ 43 کمپیوٹر سینٹر ہیں اور 30 لائبریریز ہیں۔ اسی طرح ریاست آندھرا پردیش میں 36 کمپیوٹر سینٹر ہیں اور 36 لائبریریز ہیں۔ یہ کمپیوٹر سینٹرز میں مسلسل کورسز سکھائے جاتے ہیں، کمپیوٹر کے کورسز، جس میں انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کے کورسز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لائبریریز ہیں، اس میں اردو کے کتب اور اردو کے اخبارات، رسائل وغیرہ رکھے جاتے ہیں تاکہ اردو داں طبقہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح ہماری ریاست میں مختلف اسکیمات ہیں جو تلنگانہ اردو اکیڈمی اور آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کے ذریعے ان اسکیمات کی عملاری ہوتی ہے۔ ہمارے جو اس اردو کے جو اسکیمات ہیں اس میں ایک تو ہمارا قومی زبان ہے، اردو کا ہمارا بہت ہی اچھا ایک قومی رسالہ ہے، قومی زبان۔ اس رسالے میں مختلف دانشوروں کے، یونیورسٹی اور اسکالرز کے آرٹیکلز، مضامین وغیرہ شائع ہوتے ہیں، اور یہ رسالہ نہ صرف ریاست تلنگانہ آندھرا پردیش بلکہ ہماری ریاست سے باہر بھی اس رسالے کی مانگ ہے اور لوگ اس رسالے سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہر موضوع پر کتابیں ہیں، جیسے اسلامیات، تنقید، تحقیق، اقبالیات، غالبیات اور کتابیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈنگ روم بھی چلتا ہے جس میں اخبارات آتے ہیں اور اردو انگلش میگزینز بھی آتے ہیں۔ لہذا یہاں پر لائبریری میں ڈیلی 50 تا 60 ریڈرز آتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے شام میں 5 بجے تک۔ اور ساتھ ساتھ ریسرچ سیکشن بھی ہے۔ ریسرچ سیکشن میں بھی کچھ ریسرچ اسکالر آتے ہیں جو عثمانیہ یونیورسٹی کے اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے اور ناگرجنا یونیورسٹی کے اور تلنگانہ یونیورسٹی کے جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے یہاں پر بھی استفادہ کر کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لائبریری میں ہر قسم کی
बुक्स आते हैं, हर शोरा के बुक, मशहूर मिर्ज़ा गालिब, दीवान, राही, फिदाई, मीर तक़ी, हर किस्म के बुक्स आते हैं और उसके मकतूबात उसको शाये करती है हमारी उर्दू एकेडमी की तरफ से, और वो बुक्स सेल्स भी होते हैं। और उसके अलावा उर्दू एकेडमी में डेली पेपर्स आते हैं 10 किस्म के, दखन क्रॉनिकल, टाइम्स इंडिया, हिंदू, तेलुगु वार्ता, नमस्ते तेलंगाना, साक्षी, ऐसे किस्म के पेपर्स आते हैं और पब्लिक बराबर यहाँ से तो रीडिंग रूम से तो इस्तेफ़ादा हासिल करती है। रिसर्च सेंटर्स भी है, यहाँ पे रिसर्च भी होता है, स्कॉलर्स आके पढ़ते हैं और इसमें डेली रीडिंग रूम्स है, डेली पेपर 10 बजे से 5 बजे तक खुली रहती है लाइब्रेरी, बिल्कुल फ्री, कोई कास्ट नहीं, कोई भी आके इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है लाइब्रेरी में। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी का दायरा बहुत ही वसी है। यहाँ मुनक़िद होने वाले सेमिनार और मुशायरे इल्मी दुनिया में नहायत ही पुरवकार समझे जाते हैं। यहाँ से छपने वाली किताबें इल्मी और अदबी दुनिया में उनको बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखा जाता है। इस एकेडमी की ख़ास बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश में जो मुख्तलिफ़ अदबी और सकाफ़ती तंजीमें हैं, उनसे इस एकेडमी का बड़ा इल्मी राब्ता है। ये एकेडमी उन तंजीमों को मदद करती है ताकि ये तंजीमें उर्दू ज़बान व अदब को मज़ीद फ़रोग़ दे सकें। इसके अलावा यहाँ से छपने वाली किताबें, यहाँ रिसाले बहुत ही इज़्ज़त की नज़रों से देखे जाते हैं। उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश के कारहाई नुमायां की तफसील बहुत तवील है। यह अकादमी हर साल 2 बड़े अवार्ड्स, कुली कुतुब शाह अवार्ड और मखदूम मुहीउद्दीन अवार्ड, उर्दू की सीनियर शख्सियात को उनकी इल्मी व अदबी उर्दू खिदमात के एतराफ़ में देती है। रिसर्च स्कॉलर्स, अदीबों, शायरों और अफसाना निगारों को भी उनके मुसव्विदों और किताबों पर माली इमदाद के साथ साथ उन्हें एजाज़ो एनामात से भी नवाजती रहती है। बेहतरीन उर्दू तालिब इल्मों को भी अवार्ड से सरफराज करती रहे। मखदूम अवार्ड एक कौमी अवार्ड है। इस अवार्ड में मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर यह अवार्ड दिया जाता है, शायरी पर या फ़िक्शन पर और उसी तरह तंज़ो-मिज़ा पर मुख्तलिफ़ असनाफ़ में ये अवार्ड दिया जाता है। ये कौमी अवार्ड है और इस अवार्ड की जो रकम दी जाती है, तहनीत के अलावा 1 लाख रुपए इस अवार्ड की रकम है। तो ये अवार्ड की स्कीम भी हम हर साल की तरह इस साल भी कंप्लीट कर चुके हैं, इस पर अमलारी हो चुकी है। उसी तरह एक अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड उर्दू अकादमी के ज़रिए दिए जाता है। ये अवार्ड मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ शोबे हयात में जो नुमायाँ काम किए हैं उन अफराद को, उन शख्सियतों को दिया जाता है, जैसे अक़लियतों के लिए जो काम करते हैं या एजुकेशन में तालीम पर जो काम करते हैं या फिर एक शायरी पर। ये अवार्ड भी जो हम 1,25,000 का नेशनल अवार्ड है और साल में एक मरतबा ये अवार्ड भी दिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है जो 7 ज़िमरों में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, कारनामे हयात अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड दिया जाता है। हर ज़िले से 5-5 अवार्ड दिए जाते हैं असातिज़ा को। उर्दू के डिग्री कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले एक उस्ताद को दिया जाता है, उसी तरह जूनियर कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल से जुमला हर ज़िले में 5 अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह और बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड भी उर्दू अकादमी के ज़रिए दिया जाता है। जो 10th क्लास में 10वीं जमात में जो तलबा और तालिबात जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं, ऐसे तलबा तालिबात को हर ज़िले के 5 तालिब इल्मों को ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात पर अमलारी हो रही है। तो उर्दू मतबूआत पर भी इनामात दिए जाते हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं उस पर भी इनामात दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ ज़िमरों में इस पर इनामात दिए जाते हैं। और उर्दू अदीबों, स्कॉलर और शोरा की
تخلیقات کی اشاعت کے لیے بھی اردو اکیڈمی کی جانب سے جزوی مالی اعانت دی جاتی ہے. 15,000 تقریباً 15,000 کی ہر کتاب پر جزوی مالی اعانت دی جاتی ہے. اور اردو لائبریریز کو کتابوں کی شکل میں فراہمی کی جاتی ہے، کتابوں کی شکل میں کتابوں کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح اردو جو نیوز سروسز ہیں ان کو مالی تعاون دیا جاتا ہے. اردو رسائل اور جتنے بھی میگزین ہیں اس کو بھی مالی اعانت دی جاتی ہے اردو اکیڈمی کی جانب سے. اور اردو کتابوں کی اشاعت عمل میں آتی ہے. ریئر بکس کی خاص طور پر اردو اکیڈمی کی جانب سے اشاعت عمل میں آتی ہے. یہاں اردو کمپیوٹر ٹریننگ کا بھی معقول انتظام ہے. ہمارے اردو مسکن کے احاطے میں کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر، جہاں پر 120 طلباء کو مفت کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے. 120 طلباء کو 6 بیچز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. مثلاً 10:30 سے 11:30، 11:30 سے 12:30، اسی طرح 5:30 تک 6 مسلسل بیچز ایک گھنٹے کے چلائے جاتے ہیں. ہر بیچ میں قریب 15 سے 20 بچے ہوتے ہیں. اور یہ کورس اردو اکیڈمی کی جانب سے بالکل فری ہے. اس کے لیے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے. کمپلیٹ ہونے پر کورس کے گورنمنٹ مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلم بچے ہٹ کے غیر مسلم بھی کافی استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری کمپیوٹر کی ٹریننگ میں ایک اردو کا سافٹ ویئر بھی سکھایا جاتا ہے، جس سے غیر مسلم لوگ بھی متوجہ ہو رہے ہیں اس کی طرف. ایک دور تھا کہ اردو سے دور ہوتے جا رہی تھی اپنی قوم، اپنے نوجوان نسل، لیکن اردو اکیڈمی میں پروفیسر ایس اے شکر صاحب آنے کے بعد جو افراتفری اور جو ترقی اور جو کامیابی کی طرف اردو اکیڈمی چل پڑی، اس کی وجہ سے آج کی دور کی نوجوان نسل بھی اردو سافٹ ویئر سے بھی واقف ہو کر اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. کیونکہ انگریزی سافٹ ویئر سے زیادہ آج اردو سے ذرائع روزگار فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. جیسے کہ کوئی اخبارات میں یا تو پھر اردو میڈیا چینلز میں، یہاں پر کہیں پر بھی بچے جو اردو سافٹ ویئر بہتر انداز میں یہاں سے سیکھتے ہیں، انہیں ذرائع روزگار میں فائدہ ثابت ہو رہا ہے. ہم یہاں پر کمپیوٹر سکھاتے ہیں اردو اکیڈمی کی جانب سے. یہاں پر 6 منتھس کا کورس سکھایا جاتا ہے ADCA اینڈ MLDTP ایڈوانس ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن اینڈ ملٹی لینگویج ڈیسک ٹاپ پروگرامنگ، جس کے تحت ہم یہاں پر فی الحال اب 170 بچے سیکھ رہے ہیں، جو کہ 6 ماہی کورس ہے. 6 ماہ کے بعد پھر ان کا ایگزام ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں بچے روزانہ آتے ہیں، سیکھتے ہیں محنت کے ساتھ. اس کے علاوہ یہاں پر ان کی تعلیمی قابلیت کے علاوہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ان کے اوپر امپروو کرنے کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں. میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہاں پہ ADCA اینڈ MLDTP کورس کر رہا ہوں. میں یہاں پر یہ کمپیوٹر سینٹر میں ADCA اینڈ DTP کورس کر رہی ہوں. تقریباً 5 منتھس کا کورس ہو چکا ہے، جس میں یہاں پر ADCA اینڈ MLDTP میں جو کہ کورس ہے، اس میں یہاں پر MS آفس، MS DOS، ان پیج، کورل ڈرا، فوٹوشاپ، یہ سب کورس سکھائے جاتے ہیں، جو کہ پروفیشنل بیسس پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا. امپلائمنٹ بینیفٹ کے لیے بھی، امپلائمنٹس کے لیے بھی بہت ہی اچھا رہے گا. آج کل کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا سب سورس ہے. اس کے علاوہ کتابوں کی نمائش اور اردو میلوں کا انعقاد بھی اکادمیوں کی سرگرمیوں میں شامل ہے. اس کے علاوہ اکادمی کی کئی اسکیموں اور منصوبوں پر کام جاری ہے. اس کے کارہائے نمایاں کی فہرست بہت طویل ہے اور کارگزاریاں بے شمار ہیں. ایک سینٹرل لائبریری بھی چلائی جاتی ہے، جس میں ایک ریسرچ سینٹر قائم ہے، جہاں پر الحمدللہ اردو کے تمام کتابوں کا ذخیرہ ہے. قریب میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 سے 10,000 کتابیں موجود ہیں، جو اردو اسکالرس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے.
इंटरनेशनल लेवल के भी रिसर्च स्कॉलर्स आके यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल करते रहते हैं फ़क्तन। इससे हट के लाइब्रेरी के हिस्से में एक रीडिंग रूम भी चलाया जाता है जहाँ पर तमाम पीरियडिकल्स, उर्दू अखबारात, इंग्लिश के अखबारात और तेलुगु के अखबारात भी फ़राहम किए जाते हैं आवाम के लिए, जो सुबह 10:30 ता 5:30 तक खुली रहती है। और इससे हट के हमारे पास एक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के उर्दू मीडियम बुक्स का सेल्स काउंटर भी है। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर के CEC, HEC के किताबें दस्तयाब है हमारे पास, निसाबी कुतुब, और सेकेंड ईयर के MPC, BPC के। उर्दू मीडियम के आमतौर पे देखा जाता है कि आसानी से सहूलत फ़राम नहीं होती, कहीं जाके दुकान पे अवेलेबल नहीं रहते। इस वजह से हमारे पास उर्दू एकेडमी फ़रोग़ उर्दू के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए निसाबी कुतुबों का काउंटर यहाँ उर्दू मस्कन में क़ायम की। उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश के पास किताबों का अच्छा खासा खजाना मौजूद है। लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेशकीमती किताबें दस्तयाब हैं। इसके अलावा इंतहाई नादिर व नायाब कलमी नुस्खे भी इस लाइब्रेरी की जीनत में इजाफा और इसके वक़ार को दोबाला कर रहे हैं। साथ साथ अहम तरीन मतबूआत भी यहाँ बासानी फराहम है। सन 1975 से लेकर आज तक उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश ने बिना रुके, बिना थके और पूरी ईमानदारी के साथ कदम कदम पर कामयाबी की मनाजिल तय की हैं। उर्दू की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन इक़दामात किए हैं। उर्दू के इर्तक़ा के सफ़र में अकादमी को यकीनन मुश्किलात और मसाइल का सामना भी करना पड़ा, और आज भी ऐसी कुछ मुश्किलात और मसाइल ज़रूर हैं जिन्हें दूर करने और हल करने की अरकान अकादमी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अगर ये अरकान कामयाब हो जाते हैं तो चमनिस्तान उर्दू में मजीद बहार आ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा उर्दू के चराग रोशन हो सकेंगे। फिलहाल तो अकादमी की सरगर्मियां और तरक्कियां इत्मीनान बख्श हैं। उर्दू अकादमी उर्दू ज़बान, उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए मुसलसिल तेज़ी के साथ काम कर रही है। न सिर्फ ज़बान व अदब बल्कि उर्दू की तहज़ीब, उर्दू के कल्चर के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स उर्दू अकादमी के ज़रिए हमारी रियासत में किए जा रहे हैं। और सारे हमारी रियासत के शोरा इकराम, मुसन्निफ़ीन, जितने भी हमारे अदीब हैं, वो सारे के सारे हमारी रियासती उर्दू की अंजुमनें रियासती उर्दू अकादमी को ताउन करती हैं और हमारे हर प्रोग्राम में, हमारी हर स्कीम में वो पेश रहते हैं और हमारी हर स्कीम को कामयाब बनाते हैं। उर्दू की बका के लिए यानी कि यहाँ पे उर्दू लाइब्रेरी भी है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी है। यहाँ पे ऐसे किताबें हैं जो कि जिससे कि जो आम तौर से तकरीबन कहीं पे भी नहीं मिलती हैं तकरीबन। और उर्दू की बका यहाँ से समझिए कि ये उर्दू एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से उर्दू की बका है।
आंध्र प्रदेश सरकार उर्दू को जिला बख्शना चाहती है और जितना भी मुमकिन हो सकता है माली मदद भी दे रही है। बाकी ये हम उर्दू वालों की जिम्मेदारी है कि हम उर्दू को कितना प्यार देते हैं और कितना इसे अपनाते और गले लगाते हैं। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश का मकसद भी उर्दू की तरवीज व अशात के साथ साथ इसे जिंदगी के हर शोबे में जारी व सारी करना है। यही इसका नस्बुल ऐन है और यही इसका मिशन, जिसे पूरा करने में अकादमी का हर शख्स पूरी ईमानदारी के साथ सरगर्म अमल है। तो नाजरीन, आज हमने शहर हैदराबाद की मशहूर मारूफ उर्दू एकेडमी को देखा। यहाँ से छपने वाली किताबों को भी देखा, यहाँ की लाइब्रेरी को भी देखा, यहाँ के कारकुनान से भी हमने मुलाकात की। यहाँ का जो कंप्यूटर सेंटर है कि जो स्टूडेंट्स को तरबियत दे रहा है, उसका भी हमने मुशाहिदा किया और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि वाक़तन ये एकेडमी उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त और गंगा जमनी तहज़ीब को मज़बूत करने में भी ये इदारे बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़ज़ाने में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए इदारे के साथ, चंद नए मेहमानों के साथ, चंद नई किताबों के साथ, चंद नए मखतूतात के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी।